ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر میں حاضر ہوں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی، تو چلیے پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور شہر کی سڑکوں پر ہلکی پھلکی چہل پہل اب مدھم پڑنے لگی تھی۔ نور اپنی 2-3 قریبی سہیلیوں کے ساتھ ایک کیفے سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن ضرور تھی، مگر آنکھوں میں وہی پرانی شوخی سجی ہوئی تھی۔ وہ کسی بات پر اپنی سہیلی سارا کو چھیڑ رہی تھی اور دونوں ہنستے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ سارا نے جاتے ہوئے کہا، دیکھ لینا کل کالج میں سر نے پھر سے تمہیں لیٹ آنے پر ڈانٹنا ہے۔ تو نور نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ڈانٹنے دو، کون سا پہلی بار ہے، اور ویسے بھی مجھے کون سا ان کے کوئی ڈر سے جینا ہے۔ تم جلدی گھر جاؤ ورنہ تمہاری امی نے تمہیں پھر سے سنانی ہے۔ دونوں نے بائے کیا اور نور نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس وقت اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ ہنسی اگلے چند لمحوں میں غائب ہونے والی ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہلکے میوزک کے ساتھ اپنی کالونی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ گھر پہنچ کر سب کو کیا بہانہ بنائے گی کہ وہ اتنی دیر تک باہر کیوں تھی، کیونکہ گھر میں سب کو اس کی یہ عادت بالکل پسند نہیں تھی کہ وہ بغیر بتائے دیر تک باہر رہے۔ جیسے ہی اس کی گاڑی کالونی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور اس نے موڑ کاٹا، اچانک ایک کالے رنگ کی بڑی گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر روک دی گئی۔ اچانک ہونے والی اس حرکت سے نور کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ پر سے گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے گھبرا کر بریک پر زور سے پاؤں رکھ دیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سامنے دیکھا تو اس کے حواس ہی باختہ ہو گئے۔ دوسری گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے دارم زیدی باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے سے بالکل سخت ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑا گئی۔ دارم کو اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر نور کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے فوراً گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ڈر کو چھپانے کے لیے غصے سے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اس طرح اچانک گاڑی کیوں روکی آپ نے؟ دارم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بہت بڑے بڑے اور سخت قدم اٹھاتا ہوا سیدھا نور کی کھڑکی کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور اس کی لمبی قامت نور پر خوف طاری کر رہی تھی۔ دارم نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا اور پھر گرجتی ہوئی آواز میں بولا، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ کیا گھر والوں نے تمہیں یہی تربیت دی ہے کہ رات کے 10 بجے سڑکوں پر آوارہ گردی کرتی پھرو؟ نور جو پہلے ہی ڈر چکی تھی اب دارم کی اس بات پر غصے سے ابل پڑی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور سختی سے بولی، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے، اور میری تربیت پر بات کرنے والے کون ہیں؟ آپ میرے کوئی باپ یا بھائی ہیں جو مجھ پر اس طرح حکم چلا رہے ہیں؟ جب نور نے یہ کہا تو دارم کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک قدم اور آگے جھکا۔ اس کا چہرہ نور کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی سانسوں میں ایک گرمی تھی جو نور کو مزید گھبرا گئی۔ دارم نے ٹھنڈے اور سخت لہجے میں کہا، نہ میں تمہارا بھائی ہوں اور نہ ہی باپ، لیکن میں تمہاری وہ ذمہ داری ہوں جو تمہیں اس طرح سڑکوں پر دندناتے پھرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اور اگر تم خود عقل سے کام نہیں لوگی تو مجھے زبردستی تمہیں سیدھا کرنا پڑے گا۔ نور کا اس کا یہ انداز اور یہ جملہ دل پر خنجر کی طرح لگا۔ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، میں کوئی آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ کے اس طرح کہنے پر گھر میں بند ہو جاؤں گی۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور جہاں دل چاہے جاؤں گی۔ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ دارم نے اس کی کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کا بیگ اٹھایا اور اسے اٹھا کر خود بخود دوسری طرف لے گیا۔ نور چلاتی رہ گئی کہ میرا بیگ واپس کرو، لیکن دارم نے ایک نہ سنی۔ اس نے سختی سے کہا، اگر بحث کرنی ہے تو یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر تماشا مت لگاؤ، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو اور گھر چلو۔ نور غصے سے تھرا رہی تھی، لیکن اس کے پاس اس وقت اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی گاڑی وہیں کالونی کے گیٹ کے اندر چھوڑی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور دونوں سیدھے گھر پہنچ گئے۔ گھر کے لاؤنج میں اس وقت سب بیٹھے ہوئے تھے۔ دادی اماں ٹی وی پر نیوز دیکھ رہی تھی اور اس کے امی ابو صوفے پر بیٹھے کچھ بات کر رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو سب نے دیکھا کہ نور اندر آ رہی ہے
और उसके फौरन बाद दारम भी अंदर दाखिल हुआ है। दारम के चेहरे पर अब भी गुस्से के आसार थे। उसने बगैर किसी तमीज़ के फैमिली के सामने ही बोलना शुरू कर दिया। दादी अम्मा, अगर नूर इसी तरह रातों को बाहर घूमती रही तो एक दिन बहुत देर हो जाएगी। इसकी अकल ठिकाने लगाने का अब यही वक्त है और मेरे ख्याल में अब शादी कर देनी चाहिए। ये अल्फाज इतने अचानक थे कि लाउंज में बैठे हुए सब अफराद के मुंह खुले के खुले रह गए। नूर ने अपनी जगह पर पत्थर की मूरत बनकर दारिम को देखा। उसकी आंखों में हैरत का समंदर था और वो हकलाकर बोली, मेरी शादी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? दारिम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और दादी अम्मा को देखकर बोला, जी दादी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और इसके लिए मुझसे बेहतर रिश्ता इस पूरे ख़ानदान में आपको नहीं मिलेगा। यह सुनना था कि घर में एकदम से गहरा सन्नाटा छा गया। दादी अम्मा के चेहरे पर एक हल्की सी और मुतमईन मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो तो कब से चाहती थी कि उन दोनों की ज़िद ख़त्म हो और एक हो जाए। लेकिन नूर को तो जैसे चक्कर आने लगे। उसने गुस्से से कांपते हुए दारम की तरफ उंगली उठाई और बोली, आप होश में तो हैं दारम? मैं आपसे कभी शादी नहीं करूँगी। आप हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाते हैं। मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है आपने। मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपकी बीवी बनना तो दूर की बात है, आपका नाम भी अपने साथ नहीं जोड़ूंगी। दारम ने उसकी इस बात पर एक गहरा सांस लिया। उसके अंदर भी तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने बाहर से खुद को बहुत संभाला हुआ था। वो जानता था कि नूर को गुस्सा दिलाना उसकी मजबूरी थी, मगर नूर के ये अल्फाज उसके सीने में तीर की तरह पेवस्त हो गए थे। उसके दिल में एक कसक उठी कि अगर ये जान ले कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ तो शायद ये इस तरह कभी ना कहे। मगर उसने अपनी ज़बान पर ताला लगाए रखा और खामोश खड़ा रहा। दादी अम्मा ने अपना चश्मा दुरुस्त किया और मोहब्बत से कहा, बेटा दारम ठीक कह रहा है, अब तुम दोनों की उम्र हो गई है और वैसे भी निकाह की बात तो पहले ही चल रही थी। अब इस मामले को लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं। नूर ने अपनी अम्मी की तरफ देखा और रुहासी होकर बोली, अम्मी, आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं? मैं नहीं करना चाहती इस खड़ूस इंसान से शादी। आयशा बेगम ने अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में एक प्यार भरा डर था। वो जानती थी कि दारम अंदर से कैसा है, लेकिन वो नूर के गुस्से से भी वाकिफ थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, नूर, गुस्सा थूक दो और बदमज़गी मत करो। घर के बड़ों का फैसला है और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। नूर को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। वो एक झटके से वहाँ से मुड़ी और सीधा अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसके पाँव की आवाज़ सीढ़ियों पर बहुत तेज़ गूंज रही थी। वो कमरे में पहुँची तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके दिल में गुस्से और बेबसी का एक तूफ़ान मच रहा था और वो सोच रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी में इस दारम जैदी को इतनी दखल अंदाजी करने का हक किसने दिया है। दूसरी तरफ लाउंज में अब सब लोग बैठकर उस रिश्ते की पक्की बात करने लगे थे और दारम खामोशी से एक तरफ बैठा बस यही सोच रहा था कि उसने तो सिर्फ इसकी हिफाजत के लिए कदम उठाया था, लेकिन नूर ने उसे बिल्कुल गलत समझ लिया था। अब वो दिल ही दिल में अगले तूफान की तैयारी कर रहा था। नूर अपने कमरे के अंदर गुस्से से पागल हो रही थी। उसने अपने कपड़े अलमारी से निकाले और ज़ोर ज़ोर से बिस्तर पर फेंकने लगी। उसके जहन में बस एक ही बात घूम रही थी कि वो इस घर से चली जाएगी और इस दारम जैदी की शक्ल भी नहीं देखेगी। उसने अपना एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें जल्दी जल्दी कपड़े ठूंसने लगी। उसके हाथ गुस्से और डर की वजह से कांप रहे थे। वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी, मुझसे शादी करेगा ये खड़ूस इंसान? खुद को समझता क्या है? मैं अभी सारा के घर जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी। लेकिन उसी लम्हे उसके दिल के किसी कोने से दारम का वो चेहरा सामने आ गया जो सड़क पर उसकी हिफाजत के लिए खड़ा था, और वो सोच में पड़ गई कि क्या सचमुच उसका इस तरह भागना ठीक होगा। उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और बेड के किनारे पर बैठ गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे। वो खुद से ही नाराज़ हो रही थी कि वो इस इंसान के बारे में क्यों सोच रही है जो हर वक्त उस पर हुक्म चलाता है। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और फिर से बैग में कपड़े रखने लगी कि इतने में कमरे के बाहर दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। नूर का दिल ज़ोर से धड़का
اسے لگا شاید امی یا ابو ہوں گے۔ اس نے غصے سے کہا، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہاں باہر دارم کھڑا ہوا تھا۔ وہ سب کے سونے کے بعد چپکے سے یہاں آ گیا تھا، کیونکہ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ نور اس طرح کی کوئی نہ کوئی حماقت ضرور کرے گی۔ دارم کو اپنے کمرے کے دروازے پر اس وقت دیکھ کر نور کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ غصے سے کانپتی ہوئی بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور میرے کمرے میں کس اجازت سے آئے ہیں؟ باہر نکلیں۔ دارم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کمرے کے اندر آ کر دروازے کو ہلکا سا بند کر دیا۔ اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری اداسی اور سنجیدگی تھی جو نور کو اندر تک ہلا گئی۔ دارم نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، میں جانتا تھا کہ تم کچھ نہ کچھ کرنے والی ہو، اسی لیے سیدھا یہاں آ گیا۔ نور نے غصے سے اپنے ہاتھ باندھ لیے اور تیز آواز میں بولی، آپ کو اس سے کیا کہ میں کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں؟ میرا کمرہ ہے، میرا گھر ہے، آپ اس طرح زبردستی میرے کمرے میں کیسے گھس آئے؟ باہر جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ دارم نے اس کی دھمکی کو بالکل نظر انداز کیا اور اس کی طرف 2 قدم اور بڑھا دیے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ دارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شور مچاؤ گی تو گھر والے بھی آ جائیں گے اور پھر سب کو بتانا پڑے گا کہ تم یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا کہو گی سب کو کہ تمہارا بچپن سے ہونے والا شوہر تمہیں پسند نہیں؟ نور کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں چرا لی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دارم کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور بولی، ہاں میں بھاگ رہی تھی اور مجھے بالکل شادی نہیں کرنی آپ سے، تو کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ آپ کیوں میری زندگی عذاب بنا رہے ہیں؟ دارم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تکلیف ابھری۔ اس نے بہت دھیمی اور مدھم آواز میں کہا، میں تمہاری زندگی عذاب نہیں بنانا چاہتا نور، لیکن تم میری اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ نور نے طنزیہ انداز میں منہ بنایا اور بولی، واہ کیا محبت ہے آپ کی، جو حکم چلا کر اور زبردستی فیصلے تھوپ کر جتائی جاتی ہے۔ مجھے ایسی کسی محبت یا زبردستی کی کوئی ضرورت نہیں، دور رہے مجھ سے۔ دارم نے اس کے اس جملے پر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بتا دے کہ وہ اس کے بغیر کیسے جی رہا ہے، لیکن اس کی انا اور مردانہ ضد بیچ میں آ گئی۔ اس نے اپنے جذبات کو دباتے ہوئے کہا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، لیکن اب یہ شادی ہو کر رہے گی اور تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں میری بیوی بننا ہی پڑے گا۔ نور کو اس کی اس بات پر آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے بولنا چاہا کہ دارم نے اچانک تیزی دکھائی اور اس کا بیگ اٹھا کر دور بیڈ پر پھینک دیا۔ نور نے غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا بیگ کیوں پھینکا آپ نے؟ دارم اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا قد اور اس کی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ نور چاہ کر بھی اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر پائی۔ دارم نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی طرح کہا، بدتمیزی تو اب شروع ہوگی، نور تیار رہو۔ یہ کہہ کر دارم پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے نور غصے سے کانپتی ہوئی ہانپ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا اس پر چیخے۔ اس نے غصے میں آ کر تکیہ اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ انسان اس کا جینا حرام کر دے گا۔ ادھر باہر جانے کے بعد دارم اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا کہ کیا اس نے نور پر کچھ زیادہ ہی سختی کر دی ہے؟ کیا وہ واقعی اس سے نفرت کرنے لگی ہے؟ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ اس پر سختی نہ کرتا تو شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ادھر گھر میں اب نکاح کی تیاریاں بہت تیزی سے شروع ہو چکی تھی۔ دادی اماں نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے حکم صادر کر دیا تھا کہ اگلے 2 دن کے اندر ہی نکاح کی تاریخ رکھ دی جائے گی۔ عائشہ بیگم نے نور کے کمرے میں آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نور نے اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب رونا چاہا، لیکن اس کی غیرت نے اسے رونے نہیں دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، امی آپ سب لوگ میری زندگی کے فیصلے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میری کوئی مرضی نہیں ہے؟ عائشہ بیگم نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا دارم بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنا جانتا ہے، تم مان جاؤ
उसकी जिंदगी में तुम्हारी ही जगह है। नूर ने मुंह फेर लिया और दिल में सोचने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। आखिरकार निकाह का दिन भी आ गया। घर में रोशनियों की सजावट थी, रिश्तेदारों का शोर और गहमा गहमी उरूज पर थी। नूर अपने कमरे में सुनहरे रंग के खूबसूरत से जोड़े में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर मेकअप था और उसने दुपट्टा सर पर ओढ़ रखा था। वो आईने में खुद को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे कि दरवाज़ा खुला और करीबी रिश्तेदार लड़कियां अंदर आकर उसे बाहर ले जाने लगी। उसका दिल डूब रहा था। जब वो बाहर लॉन में लाए गए सोफे पर बैठी तो उसने सामने दारम को देखा, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ ब्राउन वेस्ट कोट पहने हुए बहुत पुरवकार लग रहा था। उसकी नज़रें सीधा नूर पर टिकी हुई थी। मौलवी साहब ने निकाह के कागजात उठाए और नूर से पूछा कि आपको यह निकाह कबूल है? नूर का गला सूख गया। उसने एक बार नज़र उठाकर दारम को देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी इल्तिजा और मलकियत का एहसास था। नूर ने कांपती आवाज़ में कहा, कबूल है। और उसके साथ ही उसके नाम के साथ दारम जैदी का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। मुकम्मल निकाह के बाद जब सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे तो दारम उठकर सीधा नूर के कमरे में चला गया, जहां नूर अकेली सर झुकाए बैठी थी। दरवाज़ा खुला तो नूर ने चौंक कर देखा, सामने दारम खड़ा था। वो डर के मारे उठकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, यहाँ क्या करने आए हैं? बाहर जाए सबके पास। दारम ने उसकी एक ना सुनी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमकदार जुनून था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नूर के कंधे को छूकर कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकती नूर, तुम सिर्फ मेरी हो। नूर का दिल दहल गया और वो पीछे हटने लगी, लेकिन दारम ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और कमरे में एक नया तूफान मच गया। निकाह के बाद अगले 2 दिन घर में एक अलग ही हलचल और रौनक का समा रहा था। सब रिश्तेदार मुबारक देने आ रहे थे और दारम का सारा दिन घर पर मौजूद रहना नूर के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। नूर अपने कमरे से निकलकर सीधा किचन में चली गई ताकि खुद को थोड़ा पुरसकून करे। उसने चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया ही था कि इतने में दारम भी किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने आरामदेह कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे, जो उसकी शख्सियत को और ज़्यादा पुरकशिश बना रहे थे। दारम ने दीवार के साथ टेक लगाई और अपनी गहरी आंखों से नूर को देखते हुए कहा, एक कप चाय इधर भी मिल सकती है क्या? नूर ने चूल्हे की तरफ देखते हुए गुस्से से चेहरा मोड़ा और एकदम अकड़ कर बोली, खुद बना ले अपने लिए चाय। मैं कोई आपकी मुलाजमा नहीं हूँ जो आपकी खिदमत करती फिरूंगी। दारम उसके इस छोटे से गुस्से पर एकदम से खुलकर मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर वो खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर नूर के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई। दारम ने धीरे से कदम बढ़ाया और किचन के बिल्कुल करीब आते हुए कहा, बीवी हो मेरी, कोई बाहर की मुलाजमा थोड़ा ही हो, और वैसे भी फर्ज बनता है तुम्हारा कि तुम अपने हाथ से मुझे चाय बना कर दो। वो रुखसती से पहले ही हक जता रहा था। नूर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने जल्दी से चम्मच उठाया और बोली, निकाह हुआ है, कोई गुलामी का मुआहदा साइन नहीं किया मैंने, खुद बना लें जाकर। दारम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी ठीक है, फिर मैं चाय खुद ही बना लेता हूँ, लेकिन तुम साथ खड़ी रहोगी तो चाय का मज़ा और बढ़ जाएगा। वो जानबूझकर किचन में टहलने लगा ताकि नूर को मज़ीद छेड़ सके। दोनों के दरमियान ये छोटी छोटी नोक झोंक चल ही रही थी कि दोपहर को नूर को अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाना पड़ा, क्योंकि प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ काम बाकी था। जब नूर यूनिवर्सिटी के लॉन में खड़ी अपने कुछ क्लास के लड़कों के साथ बात कर रही थी तो इतने में दारम भी किसी काम से वहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ का डीन उसका दोस्त था। जब उसने दूर से नूर को किसी गैर मर्द के साथ हंसते हुए बात करते देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके अंदर का अल्फा मेल और वो पुराने वाला गुस्सा एकदम से जाग उठा। दारम लंबे लंबे डग भर था वहाँ फौरन से पहुँच गया। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो चुका था। उसने सीधा नूर का बाजू पकड़ा और हल्का सा खींचते हुए कहा, ये कौन लोग हैं और इनके साथ इस तरह हंस हंस कर बातें करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? नूर इस अचानक हरकत से हौखला गई।
اس نے اپنا بازو زور سے چھڑایا اور غصے سے بھڑک اٹھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اس طرح ہاتھ ڈالنے والے، اور میرے دوستوں سے اتنی تکلیف کیوں ہے آپ کو؟ وہ میرے صرف کلاس میٹس ہیں۔ دارم نے اپنی جلی ہوئی کیفیت کو چھپانے کے لیے اور زیادہ سخت لہجہ اختیار کیا اور بولا، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں، اور آئندہ ان کے پاس بھی نظر نہ آؤ تم۔ نور کو اس کا یہ حکم دینے والا انداز دیکھ کر آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور بولی، آپ کو میری ہر چیز سے مسئلہ کیوں ہے؟ میں بچوں کی طرح آپ کے ہر حکم پر ناچنے والی نہیں ہوں۔ دارم نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں چاہت کا طوفان تھا، لیکن وہ جانتا کہ دنیا کی نظر میں وہ ابھی ایک سخت شوہر ہی لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی آواز دھیمی کی اور بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا تمہاری جیسی معصوم نہیں ہے، اور میں تمہیں کسی کی بھی نظروں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ اتنا گہرا اور دل کو چھو لینے والا تھا کہ نور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ وہ بس پلکیں جھپکائے دارم کو دیکھتی رہی، لیکن پھر اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور منہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی۔ شام کو گھر واپس آنے کے بعد بھی نور کے دماغ میں دارم کی وہی بات گونجتی رہی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر اکیلی لیٹی ہوئی تھی اور چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ انسان صرف اس پر روب جما رہا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو چکی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ رات گئے دارم کے کمرے میں سامان پیک ہو رہا تھا، کیونکہ اسے ایک بار پھر ضروری کام کے سلسلے میں بیرون ملک روانہ ہونا تھا۔ جانے سے پہلے وہ نور کے کمرے کے دروازے پر آیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ نور کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ دارم نے ہلکا سا دروازے پر دستک دی۔ نور نے چونک کر دیکھا تو سامنے دارم کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سنجیدہ تاثر تھا۔ دارم نے آہستہ سے کہا، مجھے کل صبح جانا ہے، 1 مہینے کے لیے، امریکہ۔ نور کے دل میں یہ سن کر ایک دم سے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی چیز بیٹھ گئی ہو، لیکن اس نے اپنے چہرے پر مکمل بے نیازی ظاہر کی اور کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اچھا ہے، کم از کم 1 مہینہ سکون سے گزرے گا۔ آپ کی روز روز کی ڈانٹ سے تو جان چھوٹے گی۔ دارم کے چہرے پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ 2 قدم اندر آیا اور بولا، اتنی خوشی مل رہی ہے میرے جانے کی یہ خبر سن کر؟ نور نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، یقین کریں دل چاہ رہا ہے مٹھائی بانٹ دوں۔ دارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، خوشی سنبھال کر رکھو نور، کیونکہ جب میں واپس آؤں گا تو تمہاری یہ ساری خوشی ختم کر دوں گا اور تمہیں مجھ سے ہی واسطہ پڑے گا۔ وہ یہ کہہ کر پلٹ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح جب دارم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا اور گھر سے باہر نکلا تو نور اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ جب دارم کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو نور نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے عجیب سا سناٹا اور ایک خلا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً خود کو جھٹکا دیا اور بولی، شکر ہے چلا گیا، اب میں بالکل آزاد ہوں۔ لیکن اس کی اپنی آواز میں وہ پہلا سا یقین نہیں تھا جو کچھ دن پہلے ہوا کرتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ 1 مہینہ اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں گزرنے والا۔ دارم کے بیرون ملک روانہ ہوتے ہی نور کی دنیا میں جیسے نئی بہار آ گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے قید سے آزاد کر دیا ہو۔ اب وہ جب چاہتی گھر سے باہر نکل جاتی اور جب چاہتی دیر سے واپس آتی۔ اسے اب کسی کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ نور کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی تھی۔ وہ اپنی دوست سارا کے ساتھ مختلف پارٹیز میں شرکت کرنے لگی اور اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی برتھ ڈے پارٹی میں موجود تھی۔ وہاں میوزک کا شور اور دوستوں کی ہنسی مذاق میں وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ہر نقل و حرکت پر کسی کی نظر ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے شوہر کا دوست حارث تھا، جو دارم کے کہنے پر ایک طرح سے نور کی نگرانی کر رہا تھا۔ حارث نے اپنے موبائل سے نور کی چند تصاویر لیں اور فوراً دارم کو واٹس ایپ کر دی۔ دوسری طرف 7 سمندر پار بیٹھا دارم جب حارث کی بھیجی ہوئی یہ تصویریں دیکھنے لگا تو اس کا خون کھول اٹھا۔
वो अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा गुस्से से मोबाइल को मुट्ठी में दबा गया। उसके सामने नूर के हंसते हुए चेहरे की तस्वीर थी, जिसमें वो किसी और के साथ डांस फ्लोर पर खड़ी थी। दारम ने दांत पीसते हुए हारिस को मैसेज किया। क्या कर रही है वो वहाँ, और कितनी देर तक वहाँ रहने का इरादा है उसका? हारिस ने फौरन जवाब दिया, यार वो तो पूरी तरह पार्टी के मूड में है। उसे ज़रा भी एहसास नहीं कि तुम वहाँ कितना जल रहे हो। मैंने उसे बहुत बार देखा है, वो बहुत आज़ाद होकर घूम रही है। तुम्हें उस पर कुछ सख्ती करनी चाहिए। दारम ने फ़ोन मेज़ पर पटक दिया। अपने ऑफिस में टहलने लगा। उसके अंदर का पोजेसिव शौहर इस वक्त बेकाबू हो रहा था। उसे नूर के किसी और के साथ होने से ज़्यादा इस बात का डर था कि वो अपनी निगाह की हदूद को कहीं भूल ना जाए। इसी बीच हारिस ने उसे एक बार फिर मैसेज पर छेड़ते हुए कहा, तुम अपनी मोहब्बत को छुपाने के नाम पर जो उसे रोकने की कोशिश करते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र नहीं बल्कि तुम्हारी दीवानगी है। मान जाओ दारिम, तुम उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। दारिम ने जवाब में सिर्फ एक छोटा सा मैसेज किया, मुझे उससे मोहब्बत नहीं, उसकी हिफाजत का ख्याल है हारिस, और तुम ये सब फजूल बातें बंद करो। लेकिन उसके दिल की धड़कनें गवाही दे रही थी कि हारिस सच कह रहा है। उधर नूर जब अगले दिन अपने घर के लॉन में सुकून से बैठी कॉफ़ी का मग हाथ में लिए फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। नूर ने हैरत से मैसेज खोला, जिसमें लिखा था, कैसी हो? नूर ने नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन फिर तजस्सुस में आकर जवाब दिया, आप कौन? मैं आपको नहीं जानती। सामने से फ़ौरन जवाब आया, कोई ऐसा जो तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हें बहुत गौर से देखता है। नूर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उस पर नज़र रखे हुए है। उसने फ़ौरन जवाब दिया, सॉरी लेकिन आप गलत इंसान को मैसेज कर रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ और मुझे ऐसी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। दोबारा मैसेज मत कीजिएगा। सामने से जवाब आया, मुझे मालूम है तुम शादीशुदा हो और ये भी जानता हूँ कि तुम अपने निकाह से खुश नहीं हो। तुम तो कैद हो अपनी ही ज़िंदगी में। नूर ये पढ़कर गुस्से से पागल हो गई। उसे क्या समझ रहा था? उसने गुस्से में टाइप किया, तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि मैं खुश हूँ या नहीं? मैं अपने निकाह में बिल्कुल खुश हूँ और मेरी मर्जी से निकाह हुआ है। दफ़ा हो अब तुम। उसने गुस्से से फ़ोन साइड पर फेंक दिया और फिर थोड़ी देर बाद अपनी दोस्त सारा को फ़ोन किया। सारा, यार मुझे कोई अनजान नंबर से बहुत अजीब से मैसेज कर रहा है। कोई बदतमीज़ है, उसे ब्लॉक कर दूं क्या? सारा ने फ़ोन पर हंसते हुए कहा, ओहो नूर, तुम भी ना कितनी डरपोक हो। यूनिवर्सिटी का ही कोई लड़का होगा जो तुम्हें छेड़ रहा है। उसे बस ब्लॉक कर दो और भूल जाओ। ये फजूल काम है उनके। नूर ने सारा की बात मानकर उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो उसे एक और नए नंबर से मैसेज आया, गुड मॉर्निंग नूर। नूर को शदीद गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, तुम्हें समझ नहीं आती कि मैंने तुम्हें ब्लॉक किया है? दोबारा मैसेज मत करो। सामने से जवाब आया, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ और आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। नूर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका मतलब था कि कोई उसे सच में देख रहा है। वो डर के मारे अपने कमरे के दरवाजे बंद करने लगी। उसे पहली बार वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस ना हुआ जो उसे दारिम के होते हुए मिलता था। अगरचे वो उसे खड़ूस समझती थी, लेकिन उसे ये तो यकीन था कि वो उसकी हिफाजत करेगा। अब उसे वो अनजान शख्स हर वक्त अपने करीब महसूस होने लगा था और उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा खौफ दाखिल हो चुका था जो उसे पल पल बेचैन कर रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ नामालूम नंबर से आने वाले मैसेजेस का वो सिलसिला अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। नूर के फ़ोन पर रोज़ मैसेज सुबह उठते ही कोई ना कोई आ जाता जो उसके दिल में एक अनजान सा खौफ भर देता। कभी स्क्रीन पर नमूदार होता गुड मॉर्निंग नूर, तो कभी दोपहर के वक्त उसके मोबाइल पर शो होता आज तुम बहुत खामोश थी और ब्लू फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही थी। नूर ये पढ़कर गुस्से से तमतमा उठती। वो फ़ौरन उस नंबर पर जवाबी मैसेज टाइप करती, तुम कौन हो और मेरी एक एक हरकत पर क्यों नज़र रखे हुए हो? बाज आ जाओ वरना पुलिस में शिकायत कर दूंगी। दूसरी तरफ से हमेशा एक पुरसकून और बेपरवाह सा जवाब आया, तुम्हें पुलिस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ कि तुम्हें ढूंढने की ज़हमत ही नहीं करनी पड़ेगी।
اور ایک دن تم خود مجھ سے بات کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ نور اپنا فون غصے میں بیڈ پر پٹخ دیتی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی پرائیویسی اس حد تک کون پامال کر رہا ہے۔ اس نے کئی بار چاہا کہ وہ یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دے یا اپنی سہیلی سارا سے پھر سے اس کا ذکر کرے، لیکن پھر وہ سوچتی کہ گھر میں پہلے ہی دارم کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور اگر اس نے یہ نیا کے ساتھ چھیڑ دیا تو گھر والے اسے ہی تانے دیں گے کہ وہ خود ہی لڑکوں کو موقع دیتی ہے۔ اسی الجھن اور ڈر کے عالم میں چند دن اور گزر گئے۔ گرمی کے دن تھے اور دوپہر کے وقت حبس بہت زیادہ تھا۔ نور اور اس کی یونیورسٹی کی کچھ سہیلیوں نے اگلے دن ایک سوئمنگ پول پارٹی جانے کا پلان بنایا۔ سارا نے فون پر جوش و خروش سے کہا، نور پرسوں صبح ہر حال میں تیار رہنا، ہم سب نے پول پارٹی کا سوچا ہے، بہت مزہ آئے گا۔ نور کے چہرے پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، یار میرا دل نہیں ہے، مجھے عجیب سا ڈر لگ رہا ہے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ سارا نے کہا لگاتے کہا، اوہو نور تم بھی نا، ہر وقت ڈرتی رہتی ہو، وہ کوئی یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ ہوگا جو تمہیں تنگ کر رہا ہے، چلو کل چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نور نے حامی بھر لی اور فون بند کر دیا۔ اگلے دن جب وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر دارم کا نمبر دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے دارم کی بھاری اور روبدار آواز آئی، یہ کیا حماقت ہے جو تم کرنے جا رہی ہو سوئمنگ پول کے نام پر؟ نور نے غصے سے فون کو کان کے پاس سے زور سے دبایا اور بولی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ دارم نے سرد اور سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے تمہارے بارے میں سب پتا ہے، اور کل تم کسی سوئمنگ پول نہیں جا رہی، اپنا ارادہ فوراً بدل دو۔ نور کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ میں جہاں چاہوں گی جاؤں گی، آپ 7 سمندر پار بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے، میری زندگی میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ دارم نے ایک لمبا سانس لیا اور غصے کو دباتے ہوئے بولا، میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ میرا حق ہے کہ میں تمہیں غلط جگہوں پر جانے سے روکوں۔ یہ پلان کینسل کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میں واپس آ رہا ہوں۔ نور نے غصے میں آ کر چیختے ہوئے کہا، میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے کال کاٹ دی۔ اس کا دل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہیں اس کا موبائل ایک بار پھر میسج رنگ کرنے لگا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو اسی نامعلوم نمبر سے میسج تھا، کل سوئمنگ پول ضرور آنا، میں وہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ یہ پڑھ کر نور کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے فوراً اسی نمبر پر ڈائل کیا اور کال ملا دی۔ دوسری طرف گھنٹی بجی اور کال اٹھا لی گئی۔ نور نے غصے سے چیخنا شروع کر دیا، تم ہو کون گھٹیا انسان؟ کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے بھی ہیں، کیوں تم نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے؟ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو؟ نور نے 4 بچوں کا جھوٹ بنا سوچے سمجھے بول دیا تھا۔ دوسری طرف سے مکمل خاموشی تھی، کسی نے ایک لفظ نہیں بولا، بس سانس لینے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ نور نے غصے سے کہا، بولو نا، کیوں گونگے بنے بیٹھے ہو؟ سامنے آ کر بات کرو اگر مرد ہو تو۔ اور پھر اس نے کال کاٹ دی۔ اگلی دوپہر نور یونیورسٹی سے واپس اپنے گھر پہنچی۔ وہ تھکی ہوئی اور غصے سے نڈھال تھی۔ اس نے اپنے پاؤں سے سینڈل اتار کر دور اچھالے اور اپنا بیگ اور دوپٹہ بیڈ پر پھینکتے ہوئے غصے سے بڑبڑانے لگی، کل تو جا کر ہی رہتی سوئمنگ پول، اگر اس کھڑوس کی آنے کا ڈر نہ ہوتا تو۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے کے پاس ایک مردانہ آواز گونجی، اور اگر وہ کھڑوس ابھی اور اسی وقت تمہاری سن لے تو کیا کرو گی؟ اس گھمبیر اور جانی پہچانی آواز کو سن کر نور حلق کے بل چیخ اٹھی۔ اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ دارم زیدی، وہ شخص جو زبردستی کے نکاح کے بعد اسے اکیلا چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا تھا، آج اچانک اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ اور غصے کی آمیزش تھی۔ نور نے گھبراہٹ میں اپنے بکھرے ہوئے دوپٹے کی طرف قدم بڑھانا چاہا تاکہ خود کو سنبھال سکے، لیکن دارم نے بجلی کسی تیزی سے 2 قدم بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا۔
नूर पीछे हटते हटते सीधा दीवार से जा लगी। दारम बिल्कुल उसके करीब झुका। उसकी लंबी कामत और गर्म सांसें नूर को मजीद बदहवास कर रही थी। दारम ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीमी और गहरी आवाज में कहा, जब बीवी हाथ से निकलने लगे ना और खड़ूस शौहर को इतने प्यार से याद करे तो शौहर को वापस आना ही पड़ता है नूर। नूर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वो अभी बेहोश हो जाएगी। उसने बमुश्किल अपनी आवाज निकाली और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और वापस कब आए? दारम ने उसकी और करीब होते कहा, वापस आ चुका हूं और अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नूर की आवाज काम करना छोड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस अचानक हमले पर रोए या गुस्सा करे। उसका दिल एक अजीब सी घबराहट और डर के एहसास से भर चुका था और उसे ये मालूम नहीं था कि दारम की ये वापसी उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाली है। इस ब्रेक के लिए बहुत बहुत माजरत। अब ये बताइए, क्या नूर वाकई किसी मुसीबत में पड़ चुकी थी या फिर दारम ही था जो बार बार नूर को नज़र रखकर उसे बताना चाह रहा था कि वो उसका शौहर है, या फिर अब दारम वाकई उसे अपनी बीवी बनाकर उस पर हुक्म चलाएगा? क्या नूर उसे दिल से कबूल कर लेगी? ये सब कुछ तो हमें अंजाम पर ही पता चलेगा कि नूर की कहानी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। दारम अब अपने घर वापस आ चुका था और उसकी मौजूदगी से पूरे घर का माहौल एकदम से बदल चुका था। शाम के वक्त ड्राइंग रूम में खानदान के तमाम बड़े बैठे थे और दादी अम्मा ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, देखो सब, अब निकाह तो हो चुका है और दारम भी वापस आ गया है, तो हमने सोचा है रुखसती का काम एक हफ्ते के अंदर ही निपटा दिया जाए। ये सुनते ही नूर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने फौरन तप कर कहा, मैं अभी रुखसत नहीं होना चाहती, मेरी पढ़ाई है और मैं इस तरह जल्दी से ये सब सोच भी नहीं सकती। दारम ने अपनी जगह से उठकर उसे देखा। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा और साथ ही अपनायत का एक अनोखा रंग था। उसने सख्त और धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए ऐसे छोड़कर नहीं गया था और अब फैसले का वक्त आ चुका है। और फिर घर वालों ने एक भी ना सुनी और अगले ही हफ्ते रुखसती का हतमी ऐलान कर दिया। नूर गुस्से से भरकर अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। एक तो उसकी ज़िंदगी में नामालूम नंबर से आने वाले मैसेजेस ने एक अलग ही तूफान मचा रखा था। फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई और उस पर एक नया पैगाम चमका, मैं तुम्हारी ये शादी किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। नूर ने उस मैसेज को पढ़कर गुस्से से कांपते हुए सोचा, ये पागल इंसान है कौन जो मेरी हर बात से बाखबर है और अब रुखसती के इस मामले में बीच में कूद पड़ा है। वो खौफ और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कभी इधर टहलती तो कभी बेड पर बैठ जाती। इसी कश्मकश के दौरान घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। खानदान की तमाम खवातीन जमा हो चुकी थीं। जोया पुप्पो हर एक की तैयारियों पर तबसरे कर रही थी। सारा, जो नूर की खास सहेली थी, वो आकर नूर को छेड़ने लगी, देखो नूर, तुम्हारा हैंडसम शौहर अब बिल्कुल तुम्हारे काबू में आने वाला है। नूर ने नाराजगी से उसे देखा और बोली, मुझे इस शादी में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं और तुम खामखा खुश हो रही हो। लेकिन सारा उसकी इस बात पर हंस पड़ी क्योंकि वो जानती थी कि नूर दिल ही दिल में दारम की शख्सियत से मुतासिर है। शाम के वक्त मेहंदी की रस्म का आगाज हुआ। घर के लाउंज को पीले और सुनहरी फूलों से सजाया गया। नूर ने मस्टर्ड और पिंक कलर का खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था। उसके हाथों में मेहंदी की खुशबू बसी हुई थी और वो इस सादगी में भी बहुत दिलकश लग रही थी। दारम जब तैयार होकर बाहर आया तो उसकी नज़रें सीधा नूर पर जा टिकी। वो कुछ लम्हों के लिए वहीं रुक गया। उसके अंदर का आशिक शौहर इस रूप में नूर को देखकर बिल्कुल दंग रह गया। हारिस, जो उसके साथ ही खड़ा था, उसने हल्का सा कंधा हिलाया और सरगोशी की, क्या देख रहे हो भाई? तो दारम ने संजीदा होकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तैयारी देख रहा हूँ। हारिस मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा ये कुछ नहीं कहने वाला अंदाज मैंने पहली बार नहीं देखा ब्रो।
दारम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रात गए तक घर में गहमा गहमी रही। नूर थक हार कर अपने कमरे में आई तो उसे लगा शायद अब उसे थोड़ा सुकून मिल जाएगा, लेकिन उसका दिल अब भी उसी नामालूम शख्स के मैसेजेस और दारम की वजह से बेचैन था। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर आसमान को देखने लगी। आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी क्या नया मोड़ लेने वाली है। उसका दिल एक अजीब से खौफ और मोहब्बत के एहसास के दरमियान झूल रहा था, और उसे मालूम नहीं था कि अगला सच उसके सामने किस तरह आने वाला है। अगले दिन घर का पूरा माहौल रोशनियों और फूलों की महक से महक रहा था। शादी के दिन की हलचल अपने उरूज पर थी। एक तरफ मेहमानों की तवाज़ो हो रही थी तो दूसरी तरफ नूर अपने नए कमरे में दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। उसने सुनहरे और गहरे सुर्ख रंग का बहुत खूबसूरत उरूसी जोड़ा पहन रखा था। उसके चेहरे पर हल्का और नफासत से किया गया मेकअप था। सर पर सुर्ख दुपट्टा ओढ़े वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उस सजे सजाए कमरे में बहुत तेज हो चुकी थीं। वो बार बार अपने आईने में खुद को देखती और फिर घबराकर नजरें चुरा लेती। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी का ये मोड़ इतनी जल्दी आ जाएगा। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और दारम कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद रंग की शेरवानी के साथ मैरून रंग की शॉल ले रखी थी और उसके बाल नफासत से संवारे गए थे। वो जब कमरे में आया तो उसके कदम वहीं ठहर गए। उसने पहली बार नूर को मुकम्मल दुल्हन के रूप में देखा और वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसके अंदर का आशिक शौहर जैसे अपनी पलकें झपकाना भूल गया। उसके दिल में एक तूफान बरपा हुआ था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ नूर के पास आया। नूर ने घबराहट में सर झुका लिया। उसके दिल की धड़कनें अब उसके कानों में गूंज रही थी। दारम उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपने कांपते हाथों से धीरे से नूर का घूंघट उठाया। नूर ने अपनी पलकें उठाकर एक लम्हे के लिए दारम को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा जज्बा और मलकियत का एहसास था कि नूर की सांसें रुकने लगी। दारम ने झुककर बहुत मोहब्बत से नूर के माथे पर बोसा दिया। नूर ने शर्म और घबराहट की मिली जुली कैफियत में फौरन एक झटके से खुद को पीछे हटाया और गुस्से में भरकर बोली, दूर रहे मुझसे और इस तरह करीब आने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। दारम जो उसके खूबसूरत शहर में डूबा हुआ था, नूर के इस तरह अचानक पीछे हटने पर चौंक गया। उसकी आंखों का रंग बदला। उसके चेहरे पर एक सख्त तासुर आया। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसे ऑन करते हुए कहा, तुम झूठ कह रही हो नूर। नूर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? आपको क्या लगता है मैं इस ज़बरदस्ती के निकाह से खुश हूँ? दारम ने फ़ोन की स्क्रीन उसके बिल्कुल सामने कर दी और बोला, ये पढ़ो। नूर ने जब स्क्रीन पर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही नामालूम नंबर की चैट थी जो पिछले कई दिनों से उसके फ़ोन पर आ रही थी। और हैरत की इंतहा ये थी कि उसमें नूर के अपने वो मैसेजेस भी मौजूद थे जो उसने गुस्से में उस अनजान नंबर को किए थे कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने निकाह में खुश हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। नूर के चेहरे का रंग पहले सुर्ख हुआ और फिर बिल्कुल जर्द पड़ गया। उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकला। वो हक लाकर बोली, ये क्या है? और ये नंबर तो। दारम ने गहरा सांस लिया और अपनी भारी आवाज़ में इंकशाफ किया, ये नंबर मेरा ही था नूर। ये सुनना था कि नूर को लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। वह आवाज़ बाख्ता हो गई। वो गुस्से और शदीद शर्मिंदगी के मारे कांप उठी। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और चिल्लाती हुई बोली, आप इतने गंदे इंसान हैं दारम। आपने मेरे साथ ये सब मजाक किया। आपने मुझे रोज़ मैसेज करके पागल किया और तमाशा बनाया मेरा। दारम ने उसका गुस्सा देकर खुद को संभाला और संजीदगी से कहा, हाँ मैंने किया था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और अगर तुम्हें मुकम्मल आज़ादी मिल जाए तो तुम क्या करोगी। लेकिन तुमने हर बार ये साबित किया कि तुम एक बाकिरदार लड़की हो और तुम्हारा दिल सिर्फ उस निकाह की हुदूद में रहता है। नूर की आंखों में गुस्से और धोखे के आंसू झलक आए। उसका पूरा जिस्म थर्रा रहा था। उसने गुस्से से कांपते हुए कहा, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई मुझे इस तरह अजियत देते हुए? मैं रोज़ डरती रही कि कोई अजनबी मेरे पीछे पड़ गया है
और वो अजनबी मेरा अपना शौहर निकला। आप पागल हैं दारम। दारम ने एक कदम और बढ़ाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहा, लेकिन नूर ने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। दारम ने नरमी से कहा, माफ़ी मांग लूंगा नूर, लेकिन ये सब करना मेरी मजबूरी थी। मुझे तुम्हें आजमाना नहीं था, बल्कि खुद को यकीन दिलाना था कि तुम मुझे अपना मानती हो। नूर ने मुंह फेर लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो इस इंकशाफ के बाद खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन दारम की इस गहरी मोहब्बत और उसके पीछे छुपे उस खौफ ने नूर के दिल की दीवारों को हिलाकर रख दिया था। कमरे में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी और दोनों के दरमियान मोहब्बत और नाराज़गी का एक अनोखा खेल जारी था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की सुनहरी किरणें खिड़की के पर्दों से छन कर कमरे में आई तो नूर की आंख खुली। उसने हल्का सा करवट बदली और अपने गिर्द बिखरे पुरसकून माहौल को देखा। कल रात दारम के इंकशाफ ने उसके अंदर जो हलचल मचाई थी वो अब भी उसके दिल में महसूस हो रही थी। उसे याद आया कैसे वो नामालूम शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर दारम ही था, जो उसकी वफादारी और जज्बात का इम्तहान ले रहा था। ये सोचकर नूर के गालों पर शर्मिंदगी की एक हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और खुद से ही बड़बड़ाई, कितना चालाक और जिद्दी इंसान है ये। मैं पागलों की तरह डरती रही और वो मज़े से तमाशा देखता रहा। वो बिस्तर से उठी, अपने लंबे बालों को समेटा और हल्के नीले रंग का सादा सा जोड़ा पहनकर कमरे से बाहर आ गई। किचन में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। जब वो किचन में पहुंची तो उसने देखा दारम वहां पहले से मौजूद था। उसने आरामदेह सफ़ेद शर्ट और स्याह ट्राउज़र पहन रखा था और वो खुद चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा रहा था। नूर को इस तरह सुबह सुबह किचन में देखकर दारम के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसने मुड़कर नूर को देखा और हल्की और धीमी आवाज़ में बोला, अरे मेरी दुल्हन साहिबा, इतनी जल्दी आंख खुल गई, या कल रात का गुस्सा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? नूर ने एक हल्की सी घूरती हुई नज़र उस पर डाली और बोली, ज़्यादा मजाक मत बनाए दारम, मैं आपसे अभी भी नाराज़ हूँ। आपने मेरे साथ मजाक किया था ना, मैं उसे इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं हूँ। दारम ने चूल्हा हल्का किया और धीरे से कदम बढ़ाता उसके करीब आ गया, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान चंद फासला रह गया। उसकी गहरी और नशीली आंखों में एक अनोखा प्यार था। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा जी, नाराज़ हो? चलो फिर सज़ा दे लो मुझे, लेकिन उससे पहले अपने हाथ से अपने इस नाराज़ शौहर को एक कप चाय तो बना कर दो, फिर सोचेंगे कि तुम्हारी नाराज़गी कैसे दूर करनी है। नूर का दिल जोर से धड़का। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन दारम ने हल्का सा हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। उसके लहजे की नरमी और उसकी कुर्बत ने नूर की सारी अकड़ को पिघला कर रख दिया। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, हटे ज़रा, मैं क्यों बनाऊं चाय? अपने हाथ सलामत हैं आपके, खुद बना ले। दारम ने खुलकर कहकहा लगाया और नूर की ओर करीब होते बोला, अब तो आदत डालनी पड़ेगी नूर, क्योंकि सारी ज़िंदगी अब मेरे साथ ही चाय पीनी है और मेरे ही नखरे उठाने हैं। नूर के मुंह से बेसाख्ता एक हल्की सी मुस्कुराहट निकल गई, जिसे उसने फौरन छुपाने की कोशिश की, लेकिन दारम की औकाब जैसी तेज़ नज़रों ने उसे देख लिया था। वो दोनों किचन के उस छोटे से कोने में एक दूसरे के करीब खड़े थे, जहाँ लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, बस दिलों की धड़कनें एक दूसरे से बातें कर रही थी। एक हफ्ते बाद शाम का वक्त ढल रहा था और घर के लॉन में हल्की हल्की खुनकी महसूस होने लगी थी। खानदान के बाकी अफराद अपने अपने कमरों में जा चुके थे और लॉन में सिर्फ नूर मौजूद थी। उसके जहन में पिछले चंद महीने की पूरी कहानी फिल्म की तरह चल रही थी। वो ज़बरदस्ती का निकाह, वो झगड़े, वो नामालूम नंबर के मैसेजेस और फिर दारम की बेपनाह मोहब्बत जो अब हर कदम पर जाहिर हो रही थी। दारम अंदर से 2 कप गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर बाहर आया। उसने एक कप नूर की तरफ बढ़ाया और खामोशी से उसके साथ बेंच पर बैठ गया। नूर ने कॉफ़ी का कप थाम लिया, लेकिन उसने दारम की तरफ नहीं देखा। दारम ने कॉफ़ी का एक घूंट भरा और धीमी आवाज़ में बोला, अब भी सोच रही हो कि मैंने क्यों किया ये सब? नूर ने पलके उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा इकरार और शर्मिंदगी की झलक थी। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे बस इस बात का गुस्सा है कि आपने मुझे कितना डराया था दारम। मैं तो सच में काम गई थी,
कि पता नहीं कौन घटिया इंसान मेरे पीछे पड़ गया है। दारम का दिल भर आया। उसने अपना कप साइड मेज पर रखा और नूर के दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में ले लिया। उसके हाथ सर्द थे, जिन्हें दारम ने अपनी गर्म हथेलियों में छुपा लिया। दारम की आवाज़ इस बार बहुत ज़्यादा रसीली और मध्यम थी। माफ़ कर दो नूर, बस डरता था कहीं तुम्हें खो ना दूं। मैंने कभी किसी को अपना नहीं माना था। तुम मेरी ज़िंदगी का वो पहला सच हो जिसे मैंने अपने दिल की गहराइयों से चाहा है। जब से तुमसे निकाह हुआ तो मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो गई है, लेकिन तुम्हारी वो बेपरवाही और मुझसे दूर भागने की आदत मुझे पागल कर देती थी। मैं बस ये चाहता था कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही एहसास पैदा हो जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। नूर के दिल पर जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। उसकी आंखों में मोहब्बत के आंसू तैरने लगे, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से रोका। उसने अपनी झुकी हुई पलकें उठाई और सीधा दारम की आंखों में देखा। उसके दिल की सारी दीवारें जो उसने दारम के खिलाफ बना रखी थी, अब हमेशा के लिए ढह चुकी थी। नूर ने आहिस्ता से अपना एक हाथ दारम के गाल पर रखा और उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, आप वाकई बहुत पागल हैं दारम, लेकिन आप पता नहीं क्यों आपका ये पागलपन मुझे अच्छा लगने लगा है। दारम की आंखों में एक चमक सी उभरी। उसके सब्र का इम्तहान अब ख़त्म हो चुका था। उसने बगैर किसी ताख़ीर के नूर को अपनी बाहों में समेट लिया। नूर का सर दारम के मजबूत सीने पर टिक गया, जहाँ से उसे दारम के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। एक ऐसी धड़कन जो सिर्फ और सिर्फ नूर के नाम पर धड़क रही थी। फिर दारम ने झुककर अपना चेहरा नूर के बालों में छुपा दिया और उसके माथे पर एक तवील और गहरा बोसा दिया। नूर ने अपनी आंखें बंद कर ली और ख़ुद को दारम की पनाह में मुकम्मल तौर पर सौंप दिया। वो जान चुकी थी कि अब वो उस इंसान के बगैर नहीं रह सकती। तो कैसी रही हमारी आज की कहानी? मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।